Everyone, welcome back to the channel, The Medicos Physiology. This is Sanchee Santhosh and I am going to be the second year medical student in Government Medical College. Now, this is lecture 2 on the topic Origin and Conduction of Cardiac Impulse. The first lecture was on cardiac action potential. The video is already out. Do check it out. So, let's get started. Now, as the general pathway of a conduction, how the conduction of a cardiac impulse takes place is first it originates at SAN and then it goes to AVN, that is atrioventricular node, and SAN is sinoatrial node. Then it goes to septum, apex, and the left and the right borders of the heart. This is the general path. These are the pathways through which the cardiac impulses travel. So first we start with sinoatrial node. First, the anatomy of it. It's an ellipsoidal strip and of specialized cardiac muscle, and this is present at the opening of SVC, all you know, and everybody knows it is known as the pacemaker of the heart. So why is it known as the pacemaker? Because it has self-excitation property, that is, it generates electrical activity. It self-generates the electrical activity. Because of this property, it is known as the pacemaker of the heart. Now, why this happens? Due to some specialized cells which are known as the pacemaker cells, right? तो अभी एक्चुअल में क्या होता है कि SAN fires at 100. अगर आप एक्चुअली देखो तो SAN का क्या होगा जब इफ़ यू मेजर इट, अगर SAN को खाली मेजर करो तो इट वुड बी 100 impulse per minute. But what is the normal HR? You know, that is 72 impulses per minute, right? So why is this difference? ये difference क्यों है? Because at the रेस्ट में भी आपका जो SAN है इज अंडर PNS कंट्रोल. तो PNS नॉर्मली क्या करता है? हार्ट रेट डिक्रीज करता है. सी, द हार्ट रेट इज डिक्रीज. SAN आके आपका PNS का कंट्रोल में रहता है, तो इसलिए आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है. नाउ इफ़ जस्ट सपोज अगर ये PNS मतलब क्या? वेगल स्टिमुलेशंस. तो अगर ये वेगल स्टिमुलेशंस अगर नहीं हो, अगर ब्लॉक हो जाए, तो दैट मीन्स कौन आ जाएगा इनटू कंट्रोल? एसएनएस कंट्रोल में आ जाएगा, राइट? तो जब एसएनएस कंट्रोल में आ जाएगा दैट मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, राइट? अब मान लो कि आपका हार्ट में पीएनएस भी नहीं है, एसएनएस का भी कंट्रोल नहीं है. सो व्हाट यू विल फाइंड इज, you'll find when the normal HR of that person whose PNS and SNS stimulation is not received by the SAN of that person's heart, उस पर्सन का जो नॉर्मल HR होगा दैट विल बी 100 impulses per minute. नॉर्मल HR फॉर दैट पर्सन, ठीक है? सो व्हाट डज, मतलब कि अगर PNS और SNS नहीं है दैट मीन्स व्हाट? इट्स अ डीनर्वेटिव हार्ट, राइट? सो डीनर्वेटिव हार्ट, वेयर डू यू सी इट? In a person who has transplanted his or her heart will have HR as 100 impulses per minute. Okay, now next it has from SAN, the origin of impulses have to be conducted to AVN. So it goes through various pathways. Now the two pathways known as the internodal pathway and interatrial pathway. See, these are the pathways. A nice diagram to show it. So these pathways that come in AVN. ऐसा बहुत सारा पाथवेज रहेगा. ओके, देन इट विल मूव फॉरवर्ड. तो नाउ लेट्स सी फर्स्ट. देखो, SAN से AVN में जाने के लिए आपको ये तो एट्रियम है, राइट? तो बगल में आपका SAN का सराउंडिंग में कौन सा रहेगा? आपका एट्रियल मसल फाइबर्स. सो दीज फाइबर्स जॉइन. ओके, दीज एट्रियल फाइबर्स जॉइन एंड फॉर्म नोडल फाइबर्स. कौन कौन सा? जो सराउंडिंग एट्रियल मसल फाइबर्स है, दीज जॉइन टू फॉर्म नोडल फाइबर्स. Okay, and these transmit the action potential from SAN to AVN, right? Now the velocity of this fibers, like through this the conduction will be at the velocity of 0.3 meter per second. Okay, now basically in this topic, what is the important means this chapter as a whole won't have much importance, but the numeric values, the numeric data in this chapter is very important. ठीक है, जो कहाँ पे कितना टाइम, क्या वेलोसिटी, ये सब इम्पोर्टेंट है. एंड इट हैज़ गॉट सम क्लिनिकल कोरिलेशंस विच आई विल बी explaining. A detailed explanation will be given on next topic, which is ECG. So please do subscribe for it. Now
व्हेन फ्यू बैंड्स लाइक दिस हियर, तो ये तो आपका एट्रियल मसल फाइबर्स है, ठीक है। अभी कुछ बैंड्स, ठीक है, फ्रॉम द, अभी नेम वाइज रहेगा, ठीक है। सो फ्यू बैंड्स लाइक एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, इंटर एट्रियल बैंड्स, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एंटीरियर एंड इंटर एट्रियल बैंड एंटीरियर वॉल से आएगा, ठीक है। लेटरल लेटरल वॉल से, पोस्टीरियर पोस्टीरियर वॉल से। वैसे ये सब कन्वर्ज होके एवियन में जाएंगे। आई ऑलरेडी शोड इट हियर, सी, ये सब कन्वर्ज होके एवियन में जाते हैं। सो these bands are known as anterior internodal pathway, lateral internodal pathway and posterior internodal pathway. Now what's the difference between these muscle fibers and these internodal pathways? इसका वेलोसिटी का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे 0.3 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में वेलोसिटी में द impulses will travel. Okay, so after this it has to reach to avian. So let's see about that. Now the anatomy over there, it's present, its position, it's present behind the tricuspid wall. कहाँ पे? In the triangle of Koch, right? Okay, now a very important point of this AVN is the AV delay, that is atrioventricular delay, ठीक है। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर डिले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका हार्ट एट्रिया से आपका वेंट्रिकल्स में कंप्लीट ब्लड जाने के लिए द एम्प्टिंग ऑफ ब्लड शुड बी कंप्लीटेड। सो ये डिले होता है। लाइक अब मान लो अगर ये डिले नहीं होता तो योर एट्रिया वुड हैव, मतलब एट्रिया से खून जा ही रहता होगा, तभी आपका वेंट्रिकल पंप कर देगा, दैट इज इट विल कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस, avoid this, there is a delay so that the ventricle does not contract very fast, and तो फिर तो आधा अधूरा ब्लड ही रह जाएगा, लाइक आधा ही ब्लड फ्लो हुआ रहेगा, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका क्या कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट इज दिस डिले इज इम्पॉर्टेंट फॉर emptying of blood, complete emptying of blood from atria into the ventricle. Now how much is this delay? It's 0.16 seconds. Now 0.16 seconds, how is it contributed? Okay, so there are three timings like this, okay, 0.09 seconds, 0.04 seconds and 0.03 seconds. So let's see this one first. 0.03 seconds is conductional delay. Okay, first delay होता है आपको कंडक्शन में, फ्रॉम एस एन टू एवीएन में आने का टाइम में ये डिले होता है, दैट इज ऑफ 0.03 सेकेंड्स। नेक्स्ट ये वाला, ये एवीएन में 0.09 सेकेंड्स का डिले होता है, मतलब एवीएन में से जब जो आपका इम्पल्स पास होता है तो एवीएन ये खुद डिले करवाता है 0.09 सेकेंड्स, ठीक है। और देन उसके बाद 0.04 सेकेंड्स का डिले होता है, कहाँ पे? इन द पेनिट्रेटिंग एवी बंडल, आई शो यू नाउ, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? 0.03, 0.09, 0.04, सबको ऐड अप करो, 0.16 सेकेंड्स। नो सी है, ये देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये आपको जो मसल फाइबर से एट्रियोवेंट्रिकुलर मस्कुलर फाइबर से पार होने के टाइम में आपका ये जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं गैप्स आ गए, तो ये पेनिट्रेट कर रहा है थ्रू द मसल्स, ठीक है, थ्रू द फाइब्रस मसल टिश्यू ये पेनिट्रेट कर रहा है, तो यहाँ में होगा एक डिले। सो व्हाट आर द डिले? एक तो आने के टाइम में 0.03 का, देन एवियन में खुद में 0.04 का, 9 का, देन इधर में 0.04 का, so all over together 0.16 seconds, which is the atrioventricular delay, right? So now this delay बोल रहे हैं, पर डिले का रीज़न क्या है? द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज हाउ मच इज़ द नंबर ऑफ गैप जंक्शंस, ठीक है। रीज़न इज लेस नंबर ऑफ गैप जंक्शंस इन सक्सेसिव सेल्स in the conducting pathway. The velocity, you can say velocity is directly proportional to the number of gap junctions present, ठीक है, you can say like this. okay, तो मतलब क्या हुआ, अगर ज़्यादा वेलोसिटी, मतलब अगर गैप जंक्शन ज़्यादा रहेगा तो वेलोसिटी भी बहुत तेज़ रहेगा। तो गैप जंक्शन में होता क्या है? देयर आर कनेक्शन प्रोटीन्स, ओके, तो कनेक्शन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो कंडक्शन में फास्ट कराता है, ठीक है। अभी आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे गैप जंक्शंस के पास।
ठीक है, अभी एक क्लिनिकल, ठीक है, नाउ लेट्स गो क्लिनिकल कोरिलेशन, ठीक है। नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड देयर आर इंटरनोडल पाथवेज, ये राइट। उसी तरह एक एबनॉर्मल पाथवे होता है, ठीक है। एबनॉर्मल पाथवे किसी किसी हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे बंडल ऑफ केंट, ठीक है। ये बंडल ऑफ केंट में प्रॉब्लम क्या है कि इसका पास डिलेइंग प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिले नहीं करेगा। तो डिले नहीं क्या करेगा तो क्या होएगा, आपका कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लड नहीं होएगा। सो दिस फुल मतलब कि एबनॉर्मल पाथवे का वजह से अगर डिलेइंग प्रॉपर्टी नहीं वाला पाथवे अगर प्रेजेंट होता है तो द पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम वुल्फ पार्किंसन वाइट syndrome. What will be majorly we see, complete emptying of blood is not there, and thus the blood cardiac output will be decreased, right? जल्दी जल्दी पंप होगा. So next, further from AV bundles to like AVN से AV bundles में AVN bundles निकलेगा, and then उसके बाद right and left bundle branches में split हो जाएगा his bundles, right? See यहाँ में एक characteristic property है, you all know कि there is a one way conduction, कभी भी बैकवर्ड्स नहीं जाता, राइट? क्यों बैकवर्ड्स नहीं जाता, कभी सोचे हो? तो अगर बैकवर्ड्स जाता तो क्या होता था कि ये कंप्लीट नहीं होता था, पीछे पीछे चले जाता था। तो यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टी की वन वे कंडक्शन ही होता है, ठीक है। द इनएबिलिटी ऑफ एपी टू ट्रैवल बैकवर्ड्स, ठीक है, ये आपका बंडल फाइबर्स में प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फाइबरस बैरियर, ठीक है, fibrous barrier present between the atrial and the ventricular muscle. तो fibrous barrier present होता है आपका एट्रिया और ventricular muscle का बीच में, and it acts as an insulator. See, it acts as an insulator and prevents the impulses to go backwards, ठीक है। Next, now AVN bundles split into right and left, right? Left and left bundle branches में split हो जाता है. Now it splits below the endocardium. You know heart has 3 layers: epicardium, myocardium, endocardium. सबसे अंदर वाला एंडोकार्डियम है। तो एंडोकार्डियम के बिलो में जाके आपका एवियन बंडल स्प्लिट होते हैं। ना एवियन बंडल्स लाइक जो बंडल ब्रांच से जो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में स्प्लिट हुआ, अभी बंडल ब्रांचेस से परकंजी फाइबर्स तक पहुंचने के लिए 0.03 सेकेंड्स लिया जाता है। इम्पल्सेस बंडल ब्रांच से परकंजी फाइबर में तक 0.03 सेकेंड्स में पहुंचते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट परकंजी फाइबर्स। नाउ हियर इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब यहाँ में सबसे स्पीड जाता है, ठीक है, 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड। आई टेक इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो परकंजी फाइबर्स का स्पीड है, बहुत स्पीड है ना। आई ऑलरेडी टोल्ड कि अगर स्पीड है तो मतलब क्या है कि वहाँ पे गैप जंक्शंस ज़्यादा होंगे। सी, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैप जंक्शंस, यहाँ पे गैप जंक्शंस मैक्सिमम है इन होल हार्ट। तो आई ऑलरेडी टोल्ड कनेक्शन में प्रेजेंट होता है, एंड दे आर प्रेजेंट इन द इंटरकैलेटेड डिस्क। Okay, you know a property of heart. It has got a property known as functional syncytium, that it functions in a sync, like सब synchronized होते हैं। मतलब कोई यहाँ पर जाके कोई एक एरिया कॉन्ट्रैक्ट, अदर एरिया रिलैक्स, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। एक साथ पूरा वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, पूरा एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, राइट। देयर इज अ फंक्शनल syncytium. This is also due to the gap junctions, because it's present on the whole of heart, right? In the Purkinje fiber the maximum spread, right? Okay, now next see this diagram. You can see the transmission of impulses. See SA नोड से आपका 0 ये सेकेंड्स में आपका AV नोड में आता है, देन इट ट्रैवल्स इतना टाइम लेने के बाद वो आपके स्प्लिट एपेक्स में आ जाता है, एंड देन इट गोज फर्दर ऑन। सो क्लियर, राइट? इधर पे 0.19 सेकेंड्स में रहती है, यहाँ पे 0.022 सेकेंड्स में आ जाते हैं। दिस इज ट्रांसमिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ इम्पल्सेस एज इट रीचेस द परकंजी फाइबर्स एंडिंग। ओके, नाउ एंडिंग के बाद तो फर्दर कौन लेके जाएगा? इट इज़ द वेंट्रिकुलर मसल मास, ठीक है, वेंट्रिकल्स का जो मसल मास है वो फर्दर लेके जाएगा। तो ये ट्रांसमिशन का टाइम स्पीड आके
0.3 to 0.5 मीटर पर सेकेंड्स होता है, ठीक है। सो द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द इनिशियल बंडल ब्रांच, मतलब बंडल ब्रांच से लेके मसल वेंट्रिकुलर मसल मास तक का टोटल टाइम इज 0.06 seconds. Okay, 0.06 seconds. We all say कि SAN is a pacemaker. Why is it a pacemaker? Because I already said it has self-generating electrical activity, right? That is why it is known as a pacemaker. So now, what is normal rate? That is 70 to 80. You know as 72, right? With beats per minute. So now the range is 70 to 80 times per minute, if beats per minute. Okay. So if you see AVN and Purkinje fibers, if they are not influenced, ठीक है, अगर SAN का इन्फ्लुएंस में लोग नहीं आते हैं तो क्या होगा, AVN अगर आप अलग अलग से AVN और Purkinje फाइबर्स को अलग अलग से मेजर करोगे तो AVN का पास 40 to 60 टाइम्स पर मिनट आपको उसका रेट मिलेगा। AVN का रेट आके 40 to 60 रहेगा एंड Purkinje फाइबर्स का 15 to 40 टाइम्स पर मिनट या फिर बीट्स पर मिनट। So what does that clearly show? That they too have the ability to become a pacemaker. But why is SAN the pacemaker and not these two? Right? So it's a very good line present for this answer in Guyton and all. The discharge rate of SAN is faster than the natural self-excitatory discharge rate of either of AVN and Purkinje fibers. What does that mean? कि डिस्चार्ज रेट, जिस डिस्चार्ज जो वेलोसिटी है जिससे आपका जो SAN का अंदर से जो इम्पल्सेस निकलता है, जो कंडक्शन ओरिजिन होके जाता है, वो फास्टर है देन द जो AVN और Purkinje फाइबर्स का जो रेट है उससे स्लो है। यू कैन सी इट, राइट? इट्स वेरी क्लियर कि वो स्लो है 70 to 80 टाइम्स पर मिनट और वो 60 to 40 to 60, ये तो और 15 to 40। तो इन दोनों का इसका रेट जो SAN का रेट है, डिस्चार्ज रेट, दैट इज़ फास्टर। ओके, ये तो हो गया कोटेड लाइंस। मतलब क्या इसका मतलब होता क्या है एक्चुअली, जब SAN आके आपका डिस्चार्ज करेगा ना तो इम्पल्सेस जो है AVN तक जाएगा और कंडक्ट होएगा, फिर देन Purkinje फाइबर्स में जाएगा, ये रूट में चले जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देन अगेन SAN जब रिलीज़ करेगा तो उसका बीच में AVN और Purkinje फाइबर्स अपना जो रेट है, जो पोटेंशियल है, रेट है, वो शुरू करेगा, डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। बट उसका थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुँचने वाले से पहले ही आपका जो SAN अपना डिस्चार्ज कर दिया रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि SAN does not allow the AVN and the Purkinje fibers to reach its threshold level, तो थ्रेशोल्ड लेवल में पहुंचने नहीं देता। So that's it written. SAN discharges impulses conducted to the AVN and further to Purkinje fibers who are also discharging, but before they reach their threshold value SAN again discharges, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचने नहीं देता, इसलिए वो अपना कभी डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। Now next is a clinical case, ठीक है। Now clinical is ectopic pacemaker, as already the word suggests that is ectopic pacemaker. Ectopic pacemaker means any other pacemaker other than SAN is known as ectopic pacemaker. SAN का अलावा कोई भी pacemaker is ectopic pacemaker, right? See, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ectopic pacemakers में एक नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट, ये जो फंक्शनल सेंसिटिव प्रॉपर्टी था ये हार्ट लूज कर देगा। जो अगर आपका एक्टोपिक पेसमेकर आ जाएगा तो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, कभी ये पार्ट कभी वो पार्ट इधर उधर होएगा, जो एक साथ होता है वो प्रॉपर्टी उसको चले जाएगा। ये कब होता है, जब SAN इनहिबिट होते हैं। और एक तरीका है, अगर मान लो कि AV ब्लॉक हो जाए तो आपका जो ट्रांसमिशन है उस ऑफ इम्पल्स दैट विल बी ब्लॉक्ड, राइट। तो ये क्या होएगा, आप इसमें क्या होएगा, AV ब्लॉक में आके आपका एक नया Purkinje सिस्टम, ठीक है, डेवलप हो जाएगा। मतलब दैट इज़ Purkinje सिस्टम काम करना शुरू करेगा। तो नया रेट ऑफ दैट हार्ट वुड बी 15 to 40 बीट्स पर मिनट, राइट। ये जो AV ब्लॉक है, when the person has a sudden AV block and the start of the Purkinje system, this
ये दोनों के बीच में एक टाइम गैप होता है, दैट इज़ ऑफ 5 to 20 सी 5 to 20 सेकेंड्स का टाइम गैप हो जाता है, ठीक है। ये टाइम गैप में क्या होता है, आपका जो परकंजी फाइबर्स है ओवर ड्रिवन बाय द रैपिड साइनस इम्पल्सेस, ठीक है। रैपिड साइनस नोड का जो इम्पल्सेस है उससे ओवर ड्रिवन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो क्या होएगा, आपका एक हार्ट एक सप्रेस्ड स्टेट में चले जाएगा। और सप्रेस्ड स्टेट में मतलब वेंट्रिकल्स वोंट वर्क, राइट। सी वेंट्रिकल फेल्स टू वर्क, so fails to work. Was its major work? That is to pump blood to the other organs, right? Now the most insecure से sensitive to this condition, like कि जब ब्लड नहीं आता है, ब्लड नहीं पहुंचता है, इज ब्रेन। ओके, तो जैसा ही मतलब 5 to 20 सेकेंड इज़ वेरी बिग टाइम गैप अगर इतना में ब्रेन नहीं मिला। इफ़ यू रीड अबाउट ब्रेन you will come to know, you know it, कि जो blood vessels है they are very thin, tiny, even the capillaries, they are very thin and tiny, and millions of blood vessels are supplying your brain, ठीक है। अब अगर मान लो ये ब्लड नहीं जाता है तो दैट मीन्स कि आपका खून आपका ब्रेन में नहीं जाएगा, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग, दैट द पर्सन विल फेंट, right? So that is happening over here in the first 4 to 5 seconds. Due to the lack of blood to the brain, the person faints. Okay, delayed pickup of heartbeat is known as Stokes-Adams syndrome. Okay, now here also there is sympathetic and parasympathetic control. Okay, now few words. लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड दैट कि कुछ वर्ड्स होंगे जो मुझे समझाने होंगे, तो इस बार उस टाइम में मैंने एक वर्ड बताया था, दैट इज आइनोट्रॉफी, विच मीन्स चेंज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि दीज आर ऑल चेंज इन ऑफ द करस्पॉन्डिंग थिंग्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्रोनोट्रॉफी। क्रोनोट्रॉफी इज चेंज इन हार्ट रेट। क्रोनो मतलब क्या होता है, टाइम, राइट, क्रोनोलॉजी बोलते हैं ना, तो टाइम, और रेट भी क्या रिलेटेड टू टाइम, राइट। सो क्रोनोट्रॉफी इज हार्ट रेट। नाउ नेक्स्ट इज ड्रोमोट्रॉफी, MOK, ड्रोमोट्रॉफी इज रेट चेंज इन द रेट ऑफ कंडक्शन का चेंज रेट में चेंज होता है, इज ड्रोमोट्रॉफी। नेक्स्ट इज बैथमोट्रॉफी, इज चेंज इन द लेवल ऑफ एक्साइटेबिलिटी। ओके, तो एक क्रोनोट्रॉफी इज हार्ट रेट, ड्रोमोट्रॉफी इज कंडक्शन, बैथमोट्रॉफी इज एक्साइटेबिलिटी, आइनोट्रॉफी is force of contraction. Okay, now on basics of these words we'll see how it changes. So first we'll see parasympathetic already said, vagal stimulation, ACH, that is acetylcholine release होएगा. Now it gives two effects. First, it decreases the rate of the rhythm of the SAN, ठीक है, and other is it decreases the excitability of avian junctional fibers. तो ये जंक्शन है मतलब किसी का बीच में होगा, तो जंक्शन फाइबर्स बिटवीन एट्रियल मस्कुलेचर एंड एवियन और एट्रिया के बीच का जो जंक्शन है, वहाँ का जो जंक्शनल फाइबर्स, एवियन जंक्शनल फाइबर्स, वहाँ का जो एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज़ कर देगा। तो ऑब्वियस सा बात है, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो गया, हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा तो इवन रेट ऑफ रिदम ऑफ SAN डिक्रीज़ होता है, तो मतलब हार्ट रेट डिक्रीज़ हो गया, और उसका एक्साइटेबिलिटी सेम आपका जो इम्पल्सेस का कंडक्शन में हैम्पर करेगा, तो इट विल बी नेगेटिवली ड्रोमोट्रॉफिक। व्हाट वाज ड्रोमोट्रॉफिक? दैट वाज कंडक्शन। सो ऑलरेडी सेड कंडक्शन को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो नेगेटिवली ड्रोमोट्रॉफिक। नाउ नेक्स्ट इज, मैंने एक लाइन लास्ट क्लास में बोला था, अगर स्ट्रॉन्ग वेगल स्टिमुलेशंस हो तो आपका जो रिदमिक एक्साइटेशन को कम्प्लीटली स्टॉप कर सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग वेगल स्टिमुलेशन दिया गया जाए तो स्टॉप हो सकता है आपका रिदमिक एक्साइटेशन। तो इससे क्या होएगा, आपका वेंट्रिकल्स फॉर 5 to 20 सेकेंड्स इट विल स्टॉप बीटिंग, ठीक है। व्हेन इट स्टॉप्स बीटिंग द परकंजी सिस्टम कम्स इनटू एक्शन, सेम जो अभी मैंने बोला, द रेट विल बी 15 to 40 बीट्स पर मिनट। नाउ देयर यहाँ पे बीट बंद हो जाता है, राइट। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज द वेंट्रिकुलर एस्केप। थोड़ा देर के लिए वेंट्रिकल अपना काम से एस्केप मार लिया, तो वेंट्रिकुलर एस्केप। ओके, दिस वॉज पैरासिम्पथेटिक। नाउ ऑन टू सिंपथेटिक, ऑल ऑपोजिट इफेक्ट्स। यहाँ पे सब पॉजिटिव ही होते हैं, सब इंक्रीज करता है।
So it is positively chronotrophic, that is, it increases heart rate. It is positively dromotrophic, that is, it increases the conduction. Here it is positively pathmotrophic, that means it increases the level of excitability, right? And then ionotrophic is positively, ionotrophic is contraction, सब कुछ इंक्रीज, ये सब इंक्रीज करता है तो पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज में करता है. So I guess that's it. We come to the end of the class. Do like, comment, share and subscribe for more videos, and please do tell me what to be improved in the comment section. So thank you so much for watching. Thank you.